Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs related with the topic power, which is a very important topic, exam point of view. We will try to cover only those questions which already asked in different entrance examination. So without wasting time, let us start one by one. First question, power of a water pump is 2 kilowatt if acceleration due to gravity is equal to 10 meter per second square. The amount of water it can rise in 1 minute to a height of 10 minute is. There are 4 options are given. Okay, so यहाँ पे one pump is given whose power is nothing but the 2 kilowatt. And acceleration due to gravity we have to take it is equal to 10 meter per second square. Okay, so it lift water from ground up to the height of 10 meter. So they ask the amount of water it can rise in 1 minute. Okay, so here we know that the work done by the pump it is equals to mgh. जो भी वर्क डन वहाँ पे पंप कर रहा है इट इज इक्वल्स टू द mgh उस वाटर को लिफ्ट करने के लिए. व्हाट इज m? इट इज अ मास ऑफ दैट क्वांटिटी ऑफ वाटर. h इज नथिंग बट द हाइट अप टू it rise, and g is nothing but the acceleration due to gravity. As we know the formula of the power, so power is equals to the work done per unit time. Okay, or total work upon total time. Now total work here we can substitute mgh upon. So time it is nothing but the t. So time given it is nothing but the 1 minute. M we have to find out. Power it is given which is equals to 2 kilowatt. G acceleration due to gravity it is also given which is equals to 10. H which is also given which is equals to 10. So we modify this formula. So after modifying formula is like this one. M is equals to P into T upon GH. Substitute the all values. Power it is nothing but the 2 kilowatt. So 2 into 10 raised to power 3 into time is nothing but the 1 minute. Here we have to take in a second. So therefore it is equals to 60 second upon. Acceleration due to gravity is the 10 and H is nothing but the 10. After solving this it will become a 1200 kg kilogram. बट आंसर लीटर में है. ओके, तो अब हमें यहाँ पे केजी में से लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा. कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर लिफ्ट हुआ है. ओके, सो वॉल्यूम इज नथिंग बट द मास अपॉन डेंसिटी. टोटल मास अपॉन डेंसिटी. डेंसिटी कैन बी रिप्रेजेंट बाय रो. ओके, सो मास जो भी यहाँ पे लिफ्ट हुआ है इट इज नथिंग बट द 1200 kg. 1200 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इट इज नथिंग बट द 10 raised to power 3 kg पर मीटर क्यूब और ये kg में है. सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे दिस विल बिकम अ 1.2 मीटर क्यूब. ये आंसर आना चाहिए क्योंकि इसका यूनिट है kg और इसका यूनिट होगा kg पर मीटर क्यूब. kg के टिकट कैंसिल, मीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 1.2 मीटर क्यूब. सो हमें जितना अमाउंट ऑफ वाटर को लिफ्ट किया उसका वॉल्यूम पता चल गया. इट इज इक्वल टू 1.2 मीटर क्यूब. अब यहाँ पे मीटर क्यूब में ये वॉल्यूम आ गया, हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपली कर सकते हैं. इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 10 raised to power 3 लीटर्स से. ओके, सो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर जो भी होगा इट इज इन अ लीटर. ओके, सो इट इज इक्वल टू 1200 लीटर. सो दिस इज द आंसर 1200 लीटर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. अब यहाँ पे मैं इसको इतना डिटेल में क्यों एक्सप्लेन किया? द आंसर इज दैट अगर इंस्टेंट ऑफ वाटर अगर वो ऑयल लेते हैं तो ऑयल की डेंसिटी डिफरेंट है. अगर ऑयल की डेंसिटी डिफरेंट है तो डेफिनेटली यहाँ पे रिजल्ट्स कुछ और होते हैं. यानी 1200 kg और 1200 लीटर वाटर के लिए सेम है. ओके, 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर. It is same for the water, but other material, other liquid, it is not same.
बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। अगर आप ऑयल की बात करते हो तो ऑयल 1 लीटर ऑफ ऑयल इट इज अराउंड इक्वल्स टू 900 समथिंग ग्राम आना चाहिए, यानी 0.9 समथिंग kg। ओके, सो वाटर के लिए यहाँ पे सेम होंगे। द आंसर इज दैट डी 1200 लीटर। Next question, a weightlifter lifts 300 kg from the ground to a height of 2 meter in 3 seconds. The average power generated by him is, there are 4 options are given. So we have to use same formula as we use in last problem. Okay, so which formula is that one? The power, it is equals to total work done upon total time. Now here work done, we are लिफ्टिंग समथिंग। ओके, इतना अमाउंट ऑफ जो भी मास है इसको लिफ्ट कर रहे हैं हम अप टू दिस हाइट और इतने टाइम में। सो यहाँ पे हम लेंगे mgh अपॉन टी, क्योंकि हम लिफ्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो भी वर्क डन कर रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई वी राइट हियर। सो m it is given, it is equals to 300 kg. Acceleration due to gravity, we have to take it 9.8 and h is nothing but the 2 meter. So यहाँ पे 300 multiplied by 9.8 multiplied by h is equals to 2, okay, upon time, it is a 3 second. So when we solve this, because here this will become 100 multiplied by 2, 200 multiplied by 9.8, so it become a 960, okay, watt. This is the power, therefore it is a unit is watt. So this is the answer. The option here, the D option is correct one. Next one, an electric motor exerts a force of 40 Newton on a cable and pulls it by a distance of 30 meter in 1 minute. The power supplied by the motor in watt is, okay, so there is one electric motor which exert a force of 40 Newton on a cable and pull it by a distance of 30 meter. ओके, कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है यहाँ पे? द फोर्स जो भी एग्जर्ट हो रहा है इट इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन है। ओके, और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है केबल, वो इट इज इक्वल्स टू 30 मीटर। और कितने टाइम में ये टाइम दिया है यहाँ पे, इट इज इक्वल्स टू 1 मिनट में 60 सेकंड। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हमें पावर फाइंड आउट करना है, इतने अमाउंट्स दिए हैं, इतने पैरामीटर्स यहाँ पे दिए थे। सो to find out the power, we know various formulas. Out of that, one formula is that power is equals to force into velocity. Okay, so यहाँ पे force into velocity can be written as distance per unit time. So distance upon time. So we use this formula, substitute the value of this F, which is equals to 40 Newton, multiplied by S is equals to 30 upon 60. ओके, सो यहाँ पे ये 120 होगा, 120 अपॉन 60 इट बिकम सॉरी 1200 डिवाइडेड बाय 60 इट बिकम 20, सो 20 watt. So this is the power and the answer is A option is correct one. Next question, from a waterfall, water is falling down at a rate of 100 kg per second on the blades of turbine. If the height of the fall is 100 meter, then the power delivered to the turbine is approximately equals to, okay, so यहाँ पे देखिए एक डैम, ओके, सो डैम में वाटर फॉल हो रहा है और नीचे टर्बाइन है, और जहाँ से वाटर फॉल हो रहा है वहाँ से लेके टर्बाइन तक का डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पे, सो इट इज इक्वल्स टू द 100 मीटर। ओके, और उसके बाद यहाँ पे जो भी रेट है वाटर फॉल होने का, इट इज 100 kg पर सेकंड, 100 kg पर सेकंड इतना रेट है, यानी मास पर यूनिट टाइम। ओके, उसके बाद
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें हम 9.8 ले सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा, आंसर्स वो 10 के रिलेटेड ही दिख रहे हैं मुझे। ओके, सो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, विच फॉर्मूला? फॉर्मूला इज नथिंग बट द पावर, इट इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। ओके, सो वर्क डन, यहाँ पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था उस वाटर में, वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रहा है इनटू द काइनेटिक एनर्जी। अब कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो mgh, यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला होगा mgh अपॉन टाइम। ओके, दिस कैन बी रिटन एज m अपॉन टाइम, मास पर यूनिट टाइम इट इज गिवन, इट इज इक्वल टू 100 kg per second. So m upon t given into g into h. Okay, substitute these values. So यहाँ पे p power is equals to m की वैल्यू कितना है, it is equals to m upon t की वैल्यू कितना है, it is equals to 100 multiplied by g की वैल्यू कितना लेंगे हम 10 multiplied by h की वैल्यू कितना लेना है 100. Okay, so this is equals to 1 2 3 4 5 10 raised to power 5 watt. ओके, वैट। अब यहाँ पे 10 raised to power वैट। ओके, आंसर रिक्वायर्ड इज इन अ किलो वैट। सो हम इसको थोड़ा स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ पे 10 raised to power 2 and into 10 raised to power 3 watt. Okay, so this is equals to 10 raised to power 2 kilowatt. 10 raised to power 2 means 100, so this is equals to again 100 kilowatt. So this is nothing but the power delivered to that turbine. Okay, so option A is correct one. Next question, a car of mass 1250 kg is moving at 30 meter per second. Its engine delivers 30 kilowatt while resistive force due to the surface is 750 newton. ओके, वहाँ पे जो भी अपोजिशन हो रहा है ड्यू टू द रोड, ड्यू टू द सरफेस, इट इज इक्वल्स टू 750 न्यूटन. दिस इज नथिंग बट द फ्रिक्शन फोर्स. ओके, सो व्हाट मैक्स एक्सेलरेशन कैन बी गिवन इन द कार? सो कार को कितना एक्सेलरेशन मिल रहा है? अब कार अगर देखते हो तो उसको एक्सेलरेट कर रहा है कौन? उसको एक्सेलरेट कर रहा है ये वाला फोर्स. ओके, इंजन के द्वारा उसको क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन मिल रहा है. और उसका डी एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द फ्रिक्शन. ओके, इन बिटवीन टायर्स ऑफ द कार एंड रोड. तो फ्रिक्शन कितना है? यहाँ पे इतना दिया है. ओके, इंजन कितना पावर डिलीवर कर रहा है? इतना है. ओके, सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि इंजन उसको कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. सो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बनेगा? फॉर्मूला इज नथिंग बट द पावर, इट इज इक्वल्स टू force into velocity. Okay, so therefore force is equals to power upon velocity. What is the power? It is equals to 30 kilowatt into 10 raised to power 3 watt. Okay, upon velocity कितना है? It is equals to 30 meter per second. So जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आएगा 1000 न्यूटन. तो फोर्स जो भी एग्जर्ट कर रहा है, फोर्स जो भी एग्जर्ट हो रहा है इंजन की वजह से कार के ऊपर, इट इज इक्वल्स टू 1000 न्यूटन. और फ्रिक्शन फोर्स कितना है यहाँ पे? द फ्रिक्शन फोर्स इट इज इक्वल्स टू 750 न्यूटन. ओके, अब यहाँ पे दोनों फोर्सेस हमें पता चल गए. दिस इज द एक्सेलरेटिंग फोर्स, दिस इज द रिटार्डिंग फोर्स. अब नेट जो भी फोर्स एक्ट होगा उस व्हीकल के ऊपर, द नेट फोर्स, ओके, एफ नेट इट इज इक्वल्स टू F minus F of R, F minus F of R. This is the force due to the engine and this is the friction force, which is equals to 1000 upon 1000 minus 750. It is equals to 250 न्यूटन. ओके, तो F नेट कितना हो गया? 250 न्यूटन हो गया, 250 न्यूटन. ओके, सो यहाँ पे F नेट इज इक्वल्स टू 250 न्यूटन. ये अब हमें नेट फोर्स मिल गया. अब उस कार का मास कितना है? इट इज इक्वल्स टू 1250. ओके, और उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? इट इज इक्वल्स टू 250 न्यूटन.
Okay, so on the basis of this one we can find out the acceleration according to Newton's second law. Force is equals to mass into acceleration. Therefore acceleration is equals to force upon mass. So acceleration is equals to force upon mass. What is the force? It is equals to 250 Newton, sorry, 1250 Newton. This one, it is equals to, force is nothing but the 250 and mass is nothing but the 1250. Okay, this is equals to 1 upon 5. This is equals to 0.2 meter per second square. So this should be the answer. Okay, it is given in 1 upon 5 form. Okay, so option C is correct one. Next one, a force applied by an engine of a train of mass 2.05 into 10 to the power 6 kilogram changes its velocity from 5 meter per second to 25 meter per second in 5 minutes. The power of the engine is, okay, so there is only one formula is there. Power is equals to work done per unit time. ओके अब यहाँ पे हमें देखना है कि वर्क डन किसके फॉर्म में हो रहा है. जबकि ट्रेन की बात हो रही है, ट्रेन एक स्ट्रेट सरफेस पे रहेगा. ओके, तो यहाँ पे ट्रेन की पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा. अब कौन सी एनर्जी चेंज हो रहा है? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रहा है. पहले वेलोसिटी कितना था? 5 मीटर पर सेकंड. अभी कितना है? 25 मीटर पर सेकंड. अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा. और जो भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, दैट काइनेटिक एनर्जी, इट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, द work done, it is equals to the change in kinetic energy. What was the final kinetic energy? It is equals to half m into v2 square minus v1 square, where v2 is the initial velocity, final velocity, v1 is the initial velocity. So this is the change in kinetic energy upon time. It is nothing but the 5 minutes. 5 minutes means 5 into 10 to the power 5 into 10 5 into 60. Okay, 5 multiplied by 60 seconds. Okay, so substitute all values. 1 by 2 मास की वैल्यू दिया है 2.05 into 10 to the power 6. V2, what is the V2? It is nothing but the 25. 25 का स्क्वायर 625 आएगा, माइनस 5 का स्क्वायर ओनली 25 आएगा. ओके, अपॉन यहाँ पे कितना होना चाहिए? 300. इट इज इक्वल्स टू, अब इसको हमें सॉल्व करना. इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 205.0000. ओके, वैट. अब इसको थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 यानी 2.05 into 10 to the power 6 वैट. 10 to the power 6 होगा मेगा. सो 2.05 into 10 यहाँ पे मेगा वैट. So this is nothing but the power. Okay, 2.05 megawatt. The option B is correct one. Next question. A 60 kg man runs up a staircase in 12 seconds while a 50 kg man runs up the same staircase in 11 seconds. The ratio of the rate of doing their work is. Okay, so यहाँ पे हमें रेशो फाइंड आउट करना है उनके वर्क का. सो फॉर दैट यहाँ पे दो व्यक्ति के बारे में बात हो रही है. ओके, सो फर्स्ट मैन हैविंग द मास 60 kg and it took time 12 seconds. Okay, while second man having the mass of 50 kg, he took time 11 seconds. So here we know the general formula. General formula is nothing but the power. It is equals to work done upon time. वर्क डन अपॉन टाइम. सबसे पहले हमें ये देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे किस टाइप की एनर्जी वर्क डन का काम कर रही है. यानी वर्क डन
ओके, वर्क डन की वजह से कौन सी एनर्जी यहाँ पे बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो यहाँ पे वर्क डन की वजह से क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? mgh/t। ओके, दिस इज जनरल फॉर्मूला। सो पावर इज इक्वल टू mgh/t। ओके, सो नाउ इन दिस केस हियर for both the man, h is constant and acceleration due to gravity is constant. So therefore we modify the formula like this one. So p1 upon p2, it is equals to m1 upon m2 into t2 upon t1, क्योंकि p ये t को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, p ये m को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं क्योंकि g और h ये दोनों कैसे है? कांस्टेंट है। अब यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो फर्स्ट मैन का मास कितना है? 60 kg। सो इट इज इक्वल टू 60 अपॉन 50। सेकंड m2 की वैल्यू 50 है, मल्टीप्लाइड बाय t2 की वैल्यू कितना है? सो t2 की वैल्यू है इट इज इक्वल टू 11 सेकंड और t1 की वैल्यू कितना है? 12 सेकंड। ओके, सो जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर जो भी निकल के आएगा इट इज इक्वल 11/10। सो दिस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ देयर पावर्स। ओके, सो यहाँ पे द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डूइंग देयर वर्क, रेट ऑफ डूइंग देयर वर्क मीन्स पावर। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। यहाँ पे रेशियो ऑफ वर्क नहीं बोला है उन्होंने, रेशियो ऑफ रेट ऑफ डूइंग देयर वर्क। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स पावर। सो दिस इज द आंसर इज नथिंग बट द 11/10। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एवरेज हॉर्स पावर इज डेवलप्ड बाय एन 80 kg मैन while climbing in 10 seconds a flight of stairs that rises 6 meter vertically. ओके, सो कितना हॉर्स पावर वो डेवलप कर रहा है व्यक्ति जिसका मास कितना है? 80 kg है। ओके, देयर आर 4 ऑप्शंस आर गिवन। नाउ हियर वी आर गोइंग टू यूज सेम फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज नथिंग बट द पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क किसके फॉर्म में हो रहा है? डेफिनेटली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का ही, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो वर्क इज इक्वल टू mgh अपॉन टाइम। ओके, सो सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज। मैन का मास दिया है इट इज इक्वल टू 80 kg मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम 9.8 लेंगे इनटू 6। ओके, हाइट अपॉन टाइम की वैल्यू कितना हुआ यहाँ पे? 10 सेकंड। सो 10 इट इज इक्वल्स टू, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आएगा 470 वैट। ओके, सो दिस इज द पावर विच इज इक्वल टू 470 वैट। लेकिन पावर अब इन्होंने किस में पूछा है हमें? दे आस्क अस इन अ एचपी, हॉर्स पावर। ओके, सो देयरफॉर पावर को कन्वर्ट करना पड़ेगा वैट में से एचपी में, और कन्वर्ट करने के लिए तरीका है हमारे पास, वी हैव टू डिवाइड इट बाय 746। ओके, 746 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो भी कन्वर्ट हो चुका है ये है एचपी में। सो दिस इज इक्वल्स टू 0.63 एचपी। सो ये है आंसर। ओके, सो 746 वैट इट इज इक्वल्स टू 1 एचपी। 746 वैट इट इज इक्वल्स टू 1 एचपी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बेसिस पे हमने ये फाइंड आउट किया, जो भी आंसर वैट में आया था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है एचपी में। ओके, तो 0.63 एचपी, दिस इज द आंसर। द ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, अ फोर्स ऑफ 2I plus 3J plus 4K Newton act on a body for 4 seconds produces a displacement of 3I plus 4J plus 5K meter. The power used, okay, so यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? फॉर्मूला जो भी यूज होगा दैट इज इक्वल्स टू पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होगा। अब वर्क डन यहाँ पे क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस है। ओके, वेक्टर एफ डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर एस। ओके, वेक्टर एफ क्या है, इट इज इक्वल टू ट्वाइस आई प्लस 3j प्लस 4k। ओके, सो ये होगा एक वेक्टर, दैट इज नथिंग बट द फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद द सेकंड वेक्टर, इट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 5k। ओके, अपॉन टोटल टाइम जो भी होगा, टाइम हम यहां पे लेंगे t। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब टाइम की वैल्यू कितना है, 4 सेकंड है। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट है तो i के जो भी कोएफिशिएंट होंगे उनका प्रोडक्ट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट बिकम 6 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट बिकम 12 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट बिकम 20। ओके, 6 प्लस 12 प्लस 20 अपॉन 4। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना होगा, ये होगा 32 प्लस 6 इट इज इक्वल्स टू 38 डिवाइडेड बाय 4। दिस इज इक्वल्स टू 9.5 आना चाहिए। ओके, 9.5 वैट। सो दिस इज नथिंग बट द आंसर। आप देख रहे होंगे कि हम हर डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो पावर इस टॉपिक के ऊपर जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सभी यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 9.5 वैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम एन ऑटोमेटिक गन अ मैन फायर्स 360 बुलेट पर मिनट विथ अ स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। इफ ईच वेट 20 gram, the power of the gun is, okay, there are 4 options are there. Now here we have to find out the power. So power, it is equals to total work done upon total time. This is general formula. अब यहाँ पे हमें सोचना है कि एग्जैक्टली वर्क डन किस में हो रहा है। तो यहाँ पे जब बुलेट का फायरिंग हो रहा है तो हर बुलेट को काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है। ओके, तो उसके हिसाब से हम अगर सोचते हैं तो टोटल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच बुलेट अगर देखते हो, ओके, क्योंकि हर बुलेट की वेलोसिटी दिया है यहाँ पे, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में, और उसके बाद हर बुलेट का मास दिया है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हर बुलेट की काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, और इसके अलावा 1 मिनट में कितने बुलेट फायर हो रहे हैं वो भी इंफॉर्मेशन दिया है। तो इसको हमने जो भी वर्क डन है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू number of bullets multiplied by kinetic energy of each bullet, half mv square। यह हम ऐसा फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। सो वर्क डन की वैल्यू ऑफ n इंटू 1/2 mv स्क्वायर, दिस आर द नंबर ऑफ बुलेट्स पर मिनट है। ओके, सो यहाँ पे n मल्टीप्लाइड बाय 1/2 mv स्क्वायर अपॉन टाइम। ओके, नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम यहाँ पे दिया है, पर मिनट दिया है। सो 360 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 mv स्क्वायर। मास कितना है, 20 है, 20 ग्राम है। सो इट इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे मेरे ख्याल से 0.02 आना चाहिए। ओके, सो 0.2 यानी 2 इंटू 10⁻⁻² ले लेते हैं, इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को हम कन्वर्ट अगर करते हैं मीटर पर सेकंड में, ओके, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 360 किलोमीटर, यानी किलो मीन्स 10⁻³ अपॉन 60। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, पर आवर है तो हमें पर मिनट मल्टीप्लाइड बाय पर सेकंड। ओके, सो जब इसको सॉल्व करेंगे हम कितना आएगा, सो 360 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 यानी 3600। सो 1212
36 है, यहाँ पे 10 होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इट बिकम 100। ओके, 100 आना चाहिए। 100 मीटर पर सेकंड, ये किलोमीटर पर आवर का हम कन्वर्ट कर चुके हैं। अब 100 मीटर पर सेकंड इंटू 100 स्क्वायर। ओके, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब टाइम, यहाँ पे नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम, यानी नंबर ऑफ बुलेट्स कितने फायर हो देते 360 इन 1 मिनट। सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइम की वैल्यू आ गया है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा, इट इज इक्वल टू 600 वैट। सो दिस इज नथिंग बट द पावर विच इज इक्वल्स टू 600 वैट। ओके, 600 वैट इतना पावर आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। This was the 10th question which we already solved. The answer is nothing but the A, 600 watt. उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।